محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں موسم بہار کا دورانیہ 45 دن سے کم ہو کر محض 10 دن پر آ چکا ہے اور آئندہ چند برسوں میں موسم بہار ختم ہو جائے گا۔ ملک میں موسم سرما کا دورانیہ کم پڑ گیا ہے جبکہ گرمی کا دورانیہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور جب موسم بہار نہیں ہوگا تو پھول کیسے کھلیں گے؟ نقلی پھول تو مل جائیں گے لیکن اس میں خوشبو کیسے آئے گی؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، ماحولیاتی تبدیلی پر بات کریں گے۔ رورل سپورٹ پروگرام نیٹ ورک کے پروگرام مینیجر ہیں اور ماہر ماحولیات ہیں فضل علی سعدی صاحب۔ سعدی صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جا کو وقت دیا ہے۔ بتائیے گا اگر بہار ہم سے روٹ گئی تو کتنے خطرناک اس کے اثرات ہو سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں ایک تو بات یہ کہ بہار جو آپ بات کریں نا، پھول نہیں ہوں گے، یہ ایک الگ سی بات ہے، اس کے اثرات تو ہوں گے لیکن اس کا سب سے بڑا جو اثر موسمیاتی تبدیلی کا ہے وہ بیسیکلی ہمارے پوری زراعت کے اوپر ہے، ہمارے پانی کے ریسورسز کے اوپر ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ 10 سالوں میں اس کے اور بہت سارے اثرات جو ہے سیلاب کی صورت میں مختلف علاقوں میں پاکستان میں آیا ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ اثرات ہماری جو زیادہ تر غریب ترین علاقے ہیں اور غریب لوگ ہیں اور خصوصاً خواتین اور بچے بزرگ، ان پہ اس کے بہت زیادہ اثرات ہوں گے۔ اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے ابھی کہ جو موسمی تبدیلی ہے اس کی وجہ سے جو نقصانات آ رہے ہیں پاکستان میں، آپ نے 2010 کا سیلاب دیکھا، 11 میں دیکھا، 12 میں دیکھا اور 13 14 میں اسی طرح کے سیلاب آ گئے۔ پھر اسی طرح تھر کے علاقے میں خشک سالی کے اثرات ہو گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوں گے۔ اور ایک اور چیز جو میں ابھی آپ کا وہ رپورٹ دیکھ رہا تھا پھولوں کے حوالے سے، ایک جو نئی چیز ہم نے دیکھا ہے گلگت بلتستان کے علاقے میں، وہ اس سال جو ہے دسمبر میں پھول کھلے ہیں، تو اس کے نقصانات جو زیادہ تر ہمارے پھل فروٹ کے درخت ہوتے ہیں گلگت بلتستان کے اندر اور لوگوں کا سارا آمدن کا ذریعہ اس کے اوپر ہوتا ہے، تو جیسے پھول کھلے ہیں اس کے بعد برف پڑی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سال کا ان کا جو پیداوار تھا فصل کا وہ اس کا شدید نقصان ہو گیا ہے۔ اچھا سعدی صاحب، ڈیفارسٹیشن، گلوبل وارمنگ اور دیگر جو پولوشن ہے، یہ سب چیزیں اوور آل موسم سرما کے دورانیے میں کمی اور گرما جو ہے موسم گرما اس کے دورانیے میں اضافے کا باعث بن رہی ہے، اس سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل یہی اگر آپ پورے گلوبل اس میں دیکھیں گے تو وہ جیسے رپورٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1% یا 2% کے قریب سے گلوبل ٹمپریچر جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی۔ اس کے ایک تو جو معاشی طور پہ اثرات ہیں وہ تو ایگریکلچر کے اوپر ہے، پانی کے اوپر ہے، اور دوسرے اس کے صحت کے اثرات بھی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں ہمارے پچھلے سال جو ہے گرمی کی لو چلی، اسی طرح سے آپ نے دوسرے شہروں میں لاہور میں اسپیشلی جو بیماریاں پھیل گئی ہیں ہیلتھ کے حوالے سے اس پہ بھی اثرات ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف اس کا ہمارے معیشت کے اوپر ہے بلکہ ہمارے سماجی جو شعبے ہیں اسپیشلی صحت ہے اس کے اوپر بھی اس کے اثرات پڑیں گے، اور یہ انتہائی خطرناک ہے۔ اور اس کے لیے ہمیں اور حکومت کو اور دوسرے تنظیموں کو جو غیر حکومتی ادارے ہیں اور اسپیشلی ان لوگوں کو جو لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں ان کو اس میں شامل کر کے یہ کام کرنا پڑے گا۔ اچھا سعدی صاحب، چونکہ بہار کے ہم سے روٹ جانے کا خدشہ بڑھ رہا ہے، پیدا ہو چکا ہے، امکانات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ شاید موسم بہار ہم سے رخصت ہو جائے گا، آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ آنے والے کتنے سالوں بعد گلوبل وارمنگ اور جنگلات کا کٹاؤ جو ہے وہ اس حد تک پہنچ جائے گا کہ موسم بہار ہم سے روٹ جائے اور اس خطے سے ختم ہو جائے، یا ایسا ممکن ہی نہیں؟ نہیں، ایسے تو جیسا آپ کو پہلے بھی ایکسپرٹ جو ہے ہمارے انہوں نے بتایا کہ ایسے ہو رہا ہے آلریڈی، آپ جو ہے 45 ڈیز میں آگے اور آگے 10 ڈیز پہ چلے جائیں گے موسم بہار کے، وہ تو یقینی بات ہے، ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں ہوگا، وہ ہوگا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس میں جو زیادہ متاثر ہو رہے ہیں وہ غریب لوگ ہو رہے ہیں، خواتین ہو رہے ہیں، بچے ہو رہے ہیں اور بزرگ لوگ ہو رہے ہیں، تو ان کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا، جیسا ہمارے ادارہ ہے جس پہ ہم کام کرتے ہیں رورل سپورٹ پروگرام۔ ٹھیک ہے فضل سعدی صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے، ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ہم آپ سے مزید اس حوالے سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ شہری نہ ہونے کے ناطے ہم کیا مدد کر سکتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ماحولیاتی تبدیلیوں اور اس کے اثرات پر بات ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے معزز مہمان فضل علی سعدی صاحب، ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اس سلسلے کو وہیں سے جوڑ لیتے ہیں۔ جی فضل سعدی صاحب، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے یقیناً ہماری جو زراعت ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے، تو یہ بتائیے گا کیا ابھی حالات کنٹرول میں ہیں، کچھ ایسا ہم کر سکتے ہیں کہ ان اثرات کو کم از کم ہم کم کر سکیں؟
जी बिल्कुल, हमें सबको मिल के काम करना पड़ेगा। अभी भी जैसे हुकूमत है, हुकूमती इदारों को मिलकर काम करना पड़ेगा, और जो मुल्की सतह पे और जो देहात में लोग हैं उनको मुनज़्ज़म करना पड़ेगा, उनको इसका शऊर दिलाना पड़ेगा। और इसके साथ जो है लोगों को जब तक मुनज़्ज़म आप करेंगे, उनको शऊर देंगे कि इसके असरात क्या हैं और इन असरात को निमटने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये काम किया जा सकता है। इसमें ज़्यादातर जो पाकिस्तान का हिस्सा है, हम अलबत्ता इसको कम नहीं कर सकते कि ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सके, क्योंकि हमारा उसमें 1% से भी कम है। हम जो कर सकते हैं उसके असरात को कम कर सकते हैं, या जो उसका असर हम पे पड़ रहे हैं उसके साथ खुद को किस तरह से तब्दील कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। तो जैसे ज़राअत के हवाले से अगर हम बात कर रहे हैं, तो ज़राअत में जैसे ड्राउट बढ़ रहा है, तो हम इस तरह के फसलें उगा सकते हैं जो पानी कम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पानी का जो बेदरीर इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल बेहतर कर सकते हैं। हम जंगलात की जो कटाई कर रहे हैं उसको कम कर सकते हैं और ज़्यादा जंगलात उगा सकते हैं। और ये सारे काम ऐसे हैं जो गाँव के लोग, ख़वातीन, मर्द, ये काम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो हुकूमत को इस तरह के प्रोग्राम्स करने चाहिए जो इन इदारों को मजबूत करे, जो लोगों के अपने इदारे हों और इनमें शऊर पैदा करें और इस काम को आगे बढ़ाएं। अच्छा सादी साहब, ये बताइएगा, ये तो बात हो गई कि देही इलाकों में लोग किस तरह से जो है वो सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं। शहरी इलाकों के लोगों के लिए आप क्या मशवरा देंगे, क्योंकि शहरों में आलूदगी भी ज्यादा होती है? बिल्कुल, शहरों में भी इसी तरह के काम किए जा सकते हैं। जैसे शहर में आलूदगी की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, और शहर में जैसा आप देखते हैं कि हमारे जो मुल्क है, जहाँ पे बड़े बड़े शहर हैं, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है, यहाँ पे सबसे बड़ा शायद कंट्रीब्यूटर जो है वो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का आप अगर देखेंगे, पूरे कराची जैसे बड़ी शहर में हमारा कोई मास ट्रांसपोर्ट नहीं है, जिसकी वजह से हर एक ने अपनी कार या गाड़ी रखी हुई है। तो इसको कम किया जा सकता है। जैसे आपने इस्लामाबाद में हमारे मेट्रो बना हुआ है, इसी तरह के प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स जो है हमें कराची, लाहौर, मुल्तान और बड़े शहरों में भी करना चाहिए और उसको सपोर्ट करना चाहिए। मेरा ख्याल है उससे काफ़ी जो है फ़र्क पड़ेगा, जो इस सेक्टर का ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा है इस माहौलियाती आलूदगी के अंदर। इसी तरह से हमारी फैक्ट्रीज हैं या जो दूसरे माहौलियाती या ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं, उनको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह से एनर्जी का जो सेक्टर है, अभी ज़्यादातर हुकूमत का रुझान जो है वो ज़्यादातर कोल की तरफ है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। उससे ज़्यादा बेहतर होगा अगर हम अल्टरनेटिव एनर्जी के जो सोर्सेज हैं, जैसे हमारे पास सोलर की एनर्जी है या हमारे पास पानी से पैदा होने वाली बिजली के ज़राए हैं, उनको अगर हम इम्प्रूव करें और उस पर इन्हिसार करें तो बहुत सारा हम इसमें बेहतरी कर सकते हैं। इसी तरह से एक और जो काम हमने किया है या दूसरे इदारे भी करते हैं, उसमें ये है कि आप बायोगैस एक प्रोग्राम हो सकता है जो दही इलाकों में भी और शहरों में भी इस काम में मदद दे सकती है। अच्छा सादी साहब, आपने फरमाया कि कुछ इंडस्ट्रीज का जो हमारा मैकेनिज्म है, जिस तरह से वो काम करती हैं, वो बदलना होगा ताकि माहौलियाती आलूदगी कम हो सके। दूसरी जानिब बिजली बनाने के तरीके नए अपनाने होंगे, और साथ साथ आपने कहा बायोगैस का तरीका इस्तेमाल करना होगा, और ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है उसे बदलना होगा। लेकिन ये सारी तब्दीलियां तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, बहुत वक्त लग जाएगा, तब तक तो शायद पानी सर से गुजर नहीं जाएगा। देखें, दो तीन अभी भी अगर हुकूमत की अगर आप देखें नेशनल लेवल पे उन्होंने एक क्लाइमेट चेंज पॉलिसी भी बनाया है और उसके साथ एक एक्शन प्लान भी बनाया है। उसमें ये सारे अहदाफ रखे हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि इस पे नहीं काम हो रहा। इसमें लॉन्ग टर्म के आपको कुछ करना पड़ेगा, कुछ मीडियम टर्म के करने पड़ेंगे और कुछ शॉर्ट टर्म के करने पड़ेंगे। हाँ, यकीनी बात है ये लॉन्ग टर्म की चीजें हैं, लेकिन जब तक आप ये नहीं करेंगे, अगर हम आज कहेंगे कि ये तो लॉन्ग टर्म है, ये नहीं करेंगे, तो कहीं से तो शुरू करना है, और ये जब तक शुरू नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि इसकी डायरेक्शन तो गवर्नमेंट ने सेट की हुई है अपनी विजन 2030 में, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, जिस पे बहुत कम काम हो रहा है। अच्छा सादी साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत का आपने जिक्र किया है और कहा है कि उन्होंने प्लानिंग कर रखी है, हुकूमत कितनी संजीदा नजर आती है इस मामले को लेकर? ये तो आपको नजर आएगा जब एक्शन करेंगे। तो इस हवाले से कागजों के हद तक तो काफी संजीदा नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप कुछ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के भी सिग्नेटरीज हैं, इस वजह से भी है। और लेकिन ज्यादातर जो काम आपको नजर आएगा वो इतना नजर नहीं आता, क्योंकि जैसे कि आपका एनर्जी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हो सकता है जिसको आप इंप्रूव भी कर सकते हैं। उसमें
आप कई अरसे से देख रहे हैं कि कोई ख़ास बेहतरी नहीं हो रही है। एक सोलर पार्क हमने बनाया और उसके बाद फिर खामोश हो गए, और विंड के प्रोजेक्ट्स हैं वो कर सकते हैं हम, बायोगैस के प्रोजेक्ट जैसे मैंने बताया वो हम कर सकते हैं। तो संजीदगी तभी नज़र आएगी जब हम रियल आगे काम करते हुए नज़र आएगा हमें। ठीक है सादिक साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने ज़राअत का भी जिक्र किया था कि ज़राअत भी यकीनन इससे मुतासिर हो रही है और पाकिस्तान की 60% आबादी ज़राअत पर ही इन्हिसार करती है। तो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से आप क्या समझते हैं कि कौन सी ऐसी फसलें हैं जो कि बहुत ज्यादा मुतासिर हो सकती हैं, क्योंकि मौसमी गर्मा का दौरानिया ज्यादा है और सरमा का जो है वो कम होता जा रहा है? यकीनी तौर पे जैसे अगर आप पूरे एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को देखें पिछले सालों में वो नेगेटिव में था, तो पूरा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इससे मुतासिर होती है, चाहे वो गंदम की पैदावार हो, चाहे वो गन्ने की पैदावार हो। और स्पेशली एक और जो मसला है हमारे मुल्क में वो ये है कि हम रिसर्च नहीं करते हैं कि हमें कौन सी फसलें उगानी चाहिए और कौन से जो है इस मौजू हैं इस हवाले से। तो इस हवाले से सोचना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे हैं जिनको पानी की कम जरूरत है, तो वो फसलें उगानी चाहिए। अच्छा सादिक साहब, जरा आलमी मंजरनामे पर नजर डालते हैं इसी टॉपिक को लेकर। आपको लगता है कि क्या सिर्फ पाकिस्तान ही इससे ज्यादा मुतासिर है, या दुनिया में कोई ऐसा मुल्क भी है जो पाकिस्तान से भी ज्यादा मुतासिर हो रहा है इस मसले से? दुनिया में बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो इससे मुतासिर हो रहे हैं, और हमारा नंबर शायद 10वें नंबर पे है, और हमसे 10 और ममालिक भी हैं जो इससे मुतासिर हो रहे हैं। तो जो ममालिक 10 से ऊपर के नंबर पर हैं, यानी कि वहां पर ग्लोबल वार्मिंग के जो असरात हैं वो कम हैं, कुछ एग्जाम्पल्स उन्होंने सेट की कि क्या इकदाम हैं जो किए जाए ताकि आप ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से बच सकें? देखिए, जैसे पूरी दुनिया में काम हो रहा है, अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर काम हो रहा है और अल्टरनेटिव क्रॉपिंग्स के ऊपर काम हो रहा है, और लोग कोशिश करते हैं कि माहौलियाती आलूदगी से, जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या आपका जो है फैक्ट्रीज हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्टरनेटिव एनर्जी के यूज़ के ऊपर लेके जाएं, तो उससे यकीनी तौर पे इसमें इनके असरात में कमी आ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और बात कर रहे थे फजल अली सारी साहब और बता रहे थे कि मौसमियाती तब्दीलियों का क्या असर